Let's start with some important questions of atomic structure. And question number one. So question says, which of the following particles would, on losing an electron, have a half-filled set of p orbital? In this question, we have two different information, right? The first thing is the electron is losing from the particle. And the second information is that after the losing of electron, the p orbital should follow half-filled orbital concept. Yani after the removal of electron, p orbital must contain 3 electrons, right? So that's going to be very, very tricky, obviously. See, carbon has an atomic number of 6, and the negative charge on it means that it has 6, or altogether 7 electrons. All right. So 7 electrons in carbon, 6. So let's configure it in terms of a spin configuration. 1s2, 2s2, and 2p3. Okay, because it has 7 electrons. So after the removal of 1 electron from the 2p orbital, its configuration is going to be 1s2, 2s2, and obviously 2p2. So after the removal of electron, p orbital में half filled orbital concept follow होना चाहिए था, 3 electrons होने चाहिए थे, 3 electrons नहीं है, इसका मतलब A option is incorrect. All right. Let's talk about option B. Nitrogen has an atomic number of 7, which means nitrogen has 7 electrons. तो अगर 7 electrons हैं, तो 7 electrons की electronic configuration कर लेते हैं. 1s2, 2 and 2p3. So अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं नाइट्रोजन से, तो ऑब्वियसली 2p कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगेन 2p में जो है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा. इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट. लेट्स टॉक अबाउट सी. Nitrogen has an atomic number of 7, which means total it has 8 electrons because of this negative charge. So अगर total 8 electrons हैं, तो 1s contain 2, 2s contain 2, and 2p contain 4. ऑलराइट. तो अगर मैं p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूंगा, तो ऑब्वियसली p में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो अगर p में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो p है, p ऑर्बिटल है, वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा. अगर वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा. इस रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहा है, व्हिच मींस C is going to be the right answer. I hope it makes sense to you, right? Let's talk about second question. Second question says gallium nitride, formula is GaN, could revolutionize the design of electric light bulbs because only a small length used as a filament gives excellent light at low cost. Gallium nitride is an ionic compound. That's a very, very important information. Ionic compound containing gallium 3 plus ions. What is the electronic arrangement of the nitrogen ion in gallium nitride? First of all, नाइट्राइड आयंस का फॉर्मूला होता है N3 माइनस. नाइट्राइड आयंस में नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है. सो टोटल इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर मुझे 10 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2 एंड देन 2p6. ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैच करनी है. कहाँ लिखी हुई है? ऑप्शन डी के अंदर लिखी हुई है. तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. Let's talk about question number 3. Question number 3 says use of the data booklet is relevant to this question. The electronic structure of calcium, krypton, phosphorus, and element X are shown. Which electronic structure is that of element X? Okay, so phosphorus. Guys, phosphorus जो है वो group 15 का element है, which means it has 5 valence electrons. So s ऑर्बिटल में obviously 2 electrons होंगे और p में 3 होंगे. अब हम ये चेक करते हैं कि ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन किस ऑप्शन के अंदर है. s2p3. तो s2p3 ये दिया हुआ है, इसके अलावा कहीं नहीं है, राइट? तो इसका मतलब
A is going to be incorrect क्योंकि वो phosphorus atom को show कर रहा है. Next, let's talk about calcium. Calcium जो है वो group 2 का element है, which means इसके पास 2 valence electrons हैं. अगर 2 valence electrons हैं, then it means it belongs to group 2 of the periodic table. तो S2 होना चाहिए. तो S2 देखते हैं कहां पर लिखा है. S2 यहां पर भी लिखा है, S2 यहां पर भी लिखा है. अब आप जानते हैं कि कैल्शियम एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ऑर्बिटल कभी भी अवेलेबल नहीं होता. इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी द कैल्शियम. ऑलराइट, तो ऑप्शन बी भी गलत क्योंकि ये कैल्शियम को इंडिकेट करता है. ऑल्सो एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20. सो ऑब्वियसली ऑप्शन बी के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो गलत हो जाएगा. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर जो है वो 15 है. ऑप्शन ए एस टी भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो 15 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है. राइट. क्रिप्टन. क्रिप्टन. गाइस, क्रिप्टन जो है ना वो ग्रुप 8 का एलिमेंट है. I mean 18. It has 8 electrons in last shell. अगर 8 electrons in last shell में, तो obviously s ऑर्बिटल में 2 होंगे और p में 6 होंगे. तो चेक करते हैं s2p6 कहाँ लिखा है. s2p6 यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा तो कहीं पर भी नहीं है. तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट क्योंकि वो क्रिप्टन को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट इंडिकेट्स कि भाई जो आपके पास एलिमेंट एक्स है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सी होगी. तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर एलिमेंट एक्स. ओके, ऑप्शन ए जो है वो फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑप्शन बी जो है वो कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑप्शन डी जो है वो क्रिप्टन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ऑप्शन डी ऑब्वियसली एलिमेंट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 4. Question says, in which pair do both atoms have one electron only in an s orbital in their ground state? So ground state is basically the lower energy state of the system. And question says that both atoms have one electron in s orbital. So first of all, let's talk about the calcium. Calcium has an atomic number of 20. Let's configure it. तो ये हो जाएगा 1s2, then 2s2, then 2p6, then 3s2, 3p6, and obviously 4s2. Now this option is obviously incorrect because calcium contains 2 electrons in its s orbital, whereas examiner is asking only 1 electron in the s orbital, which is why option A is incorrect, because calcium doesn't follow the concept. All right, it doesn't follow the question rule. Now let's talk about beryllium in the second option, in option B. Beryllium has an atomic number of 4, which means it has 4 electron configuration. करोगे तो ये हो जाएगा 1s2 and 2s2. And beryllium is also an incorrect option, which means option B is also incorrect. Let's talk about helium now. Helium has an electronic configuration of 1s2 because it has an atomic number of 2. So again, in this scenario, helium contains 2 electrons in the s orbital. Examiner saying okay, 1 electron only in the s orbital, which means C also incorrect. Obviously, if A is incorrect, B incorrect, C incorrect, so correct option is going to be D. All right, and but why D? Let's talk about that. Let's talk about that. Lithium. Lithium का atomic number होता है 3. It has 3 electrons. Configuration करोगे तो ये हो जाएगा 1s2 and then 2s1. So this lithium contain 1 electron in s orbital, and obviously ये question को follow कर रहा है. इसका मतलब lithium is going to be the right element in this scenario. Let's talk about chromium as well. Chromium is a transition element. It has an atomic number of 24. Configuration करोगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 3d, and then 4s. Now 4s contain 1 and 3d contain 5. Again 4s में 1 electron है, यानी s orbital में 1 electron है.
तो ये भी क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, which means chromium is also incorrect, and therefore D is going to be the right answer. I hope it makes sense to you. Question number 5. Use of the data booklet is relevant to this question. Which graph represents the number of unpaired p orbital electrons? Number of unpaired p orbital electrons for atoms with proton number 13 to 18. Okay. 13 to 18, तो हमारे पास यहाँ पर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है. ओके ओके, तो हम सबसे पहले 13 को अटेम्प्ट कर लेते हैं. तो 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें. सो हम शॉर्टकट लगा लेते हैं बेटा क्विकली. हम 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन लिखते हैं. फिर हमारे पास 3s2 है, और फिर हमारे पास 3p1 है. ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास 13. फिर हमारे पास है एटॉमिक नंबर 14, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर लेते हैं. 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन. 3s में कितने आएंगे 2, और 3p में कितने आएंगे 2. ठीक है. देन एटॉमिक नंबर 15, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन, 3s2 एंड ऑब्वियसली 3p3. फिर हमारे पास है एटॉमिक नंबर 16, 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन, 3s2 एंड देन 3p4. फिर हमारे पास है एटॉमिक नंबर 17, 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन, 3s2 और 3p5. लास्ट बट नॉट द लीस्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन का सिंबल, 3s2 एंड देन 3p6. 2, 4 एंड दिस वन इज 6. सो वो कह रहे हैं आपसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, यानी p ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिटरमिन करने हैं. देखें, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3. बात समझ में आ रही है? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, ये रहा. यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. राइट? तो इसका मतलब p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली फर्स्ट 3 एलिमेंट्स में इंक्रीज हुए. तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स में इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये फर्स्ट 3 एलिमेंट्स में इंक्रीज हो रहे हैं, और फिर लास्ट 3 एलिमेंट्स के अंदर डिक्रीज हो रहे हैं, तो फिर लास्ट 3 एलिमेंट्स के अंदर डिक्रीज हो रहे हैं. दैट्स व्हाई डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ग्रुप ऑफ पार्टिकल इज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज. इंक्रीजिंग साइज, इंक्रीजिंग साइज. So obviously option C जो है वो incorrect होगा, because as the magnitude of positive charge increases, proton to electron attraction increases and size of the cation decreases. इसका मतलब this is going to be the smaller size, this is going to be the bigger size. अब वो आपसे पूछ रहे हैं increasing size का order बताइए क्या होगा. तो increasing size का order I believe D is going to be the right answer, because मैंने क्लास में शेयर किया था, the size of cation is smaller than that of the neutral element, whereas the size of anion is greater than that of the neutral element. इसका मतलब सोडियम का साइज जो है वो स्मॉलर होगा, उससे बड़ा नियॉन है और सबसे बड़ा फ्लोराइड आयंस है. ऑलराइट. Question 7. Use of the data booklet is relevant to this question. Which could be the proton number of an element that has 3 unpaired electrons in each of its atom? 3 unpaired electrons चाहिए. तो मैंने कहा था कि जब भी paired electrons या unpaired electrons की डिस्कशन करेगा एग्जामिनर, आपको स्पिन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आंसर डिटरमिन करना होगा. हमारा सबसे पहला एटॉमिक नंबर है 5, तो हम स्पिन कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 5 की. ये है हमारे पास 1s2, 2s2 and 2p1.
सो ऑब्वियसली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं मिले मुझे बोरॉन में, एटॉमिक नंबर 5 में, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। 13, सो मैं नियॉन लिखूंगा इंस्टेड ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, then 3s2 and then 3p1। again it is also incorrect because मेरे पास यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। एटॉमिक नंबर 15 देख लेते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह गाइस नियॉन ले लेते हैं। 3s में आपके पास 2 और 3p में आपके पास क्या हो जाएगा 3। तो आपसे उन्होंने कहा था कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एटॉमिक नंबर 15 में अवेलेबल हैं, which is why C is going to be the right answer। Next question, which element has an equal number of electron pairs and of unpaired electrons within orbitals of principal quantum number 2? Principal quantum number 2 का मतलब second shell, that is L shell। Okay, that's what we have done in the class। और वो आपसे पूछ रहा है equal number of electron pairs and unpaired electrons within the orbital। Okay, यानी वैलेंस शेल, सेकंड शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिटरमिन करो किस में होंगे। सो ऑब्वियसली पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 स्पिन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1s2 और ये हो जाएगा आपके पास 2s2। इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इट्स गोइंग टू बी द इनकरेक्ट ऑप्शन। देन कार्बन, कार्बन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1s में कितने होंगे 2, 2s में कितने होंगे 2 और 2p में कितने होंगे 2। तो आप नोट करें यहां पर 1 पेयर्ड है, वेयर एज यहां पर 2 अनपेयर्ड है इन द सेकंड शेल, राइट? तो ये भी गलत। देन वी हैव नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 7, कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 1s2 2s2 एंड देन 2p3। ऑलराइट, तो यहां पर आपके पास कितना है 1 पेयर्ड है और यहाँ क्या है 3 अनपेयर्ड है। तो इसका मतलब सेम नंबर तो नहीं मिला मुझे वैलेंस शेल में, पेयर्ड और अनपेयर्ड का, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। लेट्स टॉक अबाउट कि डी क्यों ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 and 2p4। now this is the valence shell of oxygen with the principal quantum number 2, right? अब इसको देखो, इसमें आपके पास कितने 2 पेयर हैं और इसमें आपको देखो 2 अनपेयर्ड हैं, तो सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, which is why D is going to be the right answer। Next is use of the data booklet is relevant to this question, for which particle is the removal of electron most difficult? Examiner is asking about the most difficult removal of electron। तो मोस्ट डिफिकल्ट उसमें से होगा जहां न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी। न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन attraction must be higher or must be stronger। सही है। Second thing, we know the size of anion is greater and the size of cation is smaller, so obviously nucleus to valence electron attraction stronger जो है वो cation में होगी। तो either C और D can be the right answer। okay, option A incorrect, क्योंकि रेडियस बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होगा, राइट? वो कह रहा है डिफिकल्ट बताओ। बी भी गलत फॉर द सेम रीजन। तो कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बिटवीन सी एंड डी, और हम जब जानते हैं कि डाउन द ग्रुप ionic radius increases
अगर आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली पोटेशियम आयन का जो रेडियस है वो बिगर है, सोडियम आयन का रेडियस स्मॉलर है। जब रेडियस स्मॉलर होगा तो उसमें से न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आई रिपीट अगेन, एन आयन हैज अ बिगर रेडियस, वहां न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन वीक होगी, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजियर होगा। एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट मोस्ट डिफिकल्ट, व्हिच इज व्हाई ए एंड बी इनकरेक्ट। आप जानते हैं कि सोडियम आयन है, फिर उसके नीचे पोटेशियम आयन है, obviously down the group ionic radius increase hoga, which means sodium ion has a smaller radius. Because of that, it experiences a strong nucleus to valence electron attraction, which means electron removal is very, very difficult from the sodium ion, and therefore D is going to be the right answer. Okay. Which isolated gaseous atom has total of 5 electrons occupying spherically shaped orbital? पहली बात, spherically shaped orbital का मतलब होता है, examiner is asking about s orbital, यानी आपको देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके s ऑर्बिटल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। सो वन बाय वन हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वी हैव बोरॉन, एटॉमिक नंबर इज 5, 1s2, 2s2 एंड 2p1। सो बोरॉन के s ऑर्बिटल के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि वो 5 कह रहे हैं, इसलिए ऑप्शन गलत। फ्लोरीन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 9, 1s2, 2s2, 2p5। फ्लोरीन इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि उसके s ऑर्बिटल में 4 हैं, जबकि एग्जामिनर 5 कह रहे हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 एंड देन 3s1। ओके, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो टोटल 5 ये हो जाएंगे ना, ये 4 हो गए और ये 1 5, तो आई बिलीव C is going to be the right answer. Okay, let's talk about potassium. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड देन 4s1। तो अब चेक करते हैं कि s ऑर्बिटल स्फेरिकली शेप्ड होते हैं, उनकी शेप स्फेरिकल होती है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये 4, ये 6 और ये 7। यहाँ टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि एग्जामिनर 5 पूछ रहे हैं, which is why sodium is going to be the right answer. Okay. Question 11. The electronic configuration of atom of sulfur is this. How many valence shell and unpaired electrons are present in one atom of sulfur? Okay. Sulfur की electronic configuration मैं दोबारा से करता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। And we did in the class. ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड देन 3p4। तो मुझसे वो कह रहे हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द वैलेंस शेल, और इस वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 6 सी में है, 6 डी में है, इसका मतलब आइदर 6 और आइदर सी और डी कुड बी द राइट आंसर। और फिर वो आपसे पूछ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑब्वियसली मुझे स्पिन कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, तो मैं 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन लिखता हूँ, शॉर्टकट अप्लाई करता हूँ। 3s में मेरे पास 2 होंगे और 3p में मेरे पास 4 होंगे, तो 1 2 3 4। तो मेरे पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सल्फर में, 2। तो सल्फर में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, एंड ऑब्वियसली डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर क्योंकि दोनों टिक्स जो है वो डी के अंदर करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। Neutrons are passed through an electric field. The mass of one neutron relative to 1 over 12 the mass of carbon 12 atom, and any deflection in the electric field is recorded. Which row is correct? Mass of neutron is 1, तो either B or D could be the right answer. और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रॉन का बिहेवियर जो है ना वो ऑब्वियसली डिटेक्ट नहीं होता बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज। तो मैंने क्लास में बताया था कि वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाता है, इसका मतलब वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो नॉट डिफ्लेक्टेड यहाँ है, नॉट डिफ्लेक्टेड यहाँ है, ऑब्वियसली डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। द टेबल रेफर्स to the electron distribution in the second shell of an atom with 8 protons. एटॉमिक नंबर कितना है मेरे पास, 8, और आप किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड शेल, और सेकंड शेल एटॉमिक नंबर 8। तो गाइस अगर एटॉमिक प्रोटॉन नंबर 8 है
तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p4। ये आपका वैलेंस शेल है। अब इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं आपसे, तो वो कह रहे हैं कि s ऑर्बिटल जो होता है उसकी शेप स्फेरिकल होती है, और जो p ऑर्बिटल है उसकी शेप डम्बल होती है। तो डम्बल शेप जो है वो p होगा, और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। तो p में 4 कहाँ आ रहे हैं, p में 4 यहाँ आ रहे हैं। तो आई थिंक b इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। और s में 2 आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और s में कितने आ रहे हैं बेटा, 2। ऑलराइट, s में कितने आ रहे हैं, 2। सॉरी, s में कितने आ रहे हैं, 2। p में कितने आ रहे हैं, 4। तो S2P4 कहाँ लिखा है, S2P4 ये लिखा हुआ, which is why B is the right answer. Okay, that's an easy question. Now the next is beam of charged particles are deflected by an electric field. The angle of deflection of a particle is proportional to its mass to charge to mass ratio. That's what we have done in the class. In an experiment, protons are deflected by an angle of plus 15 degree. In another experiment, under identical conditions, this ion are deflected by an angle of y degree. What is the value of y? तो सबसे पहले तो हम प्रोटॉन को सब्जेक्ट बनाते हैं. We did this sort of question in the class. So प्रोटॉन का चार्ज होता है 1, I mean +1, और प्रोटॉन का मास होता है 1। तो अगर चार्ज टू मास रेशो लूं मैं प्रोटॉन का, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी 1। 1/1 मींस 1। और जब प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशो 1 होता है तो इट्स एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज +15 डिग्री। अब वो कह रहे हैं पार्टिकल H2 इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। तो कॉम्पोजिशन देखो, इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इसमें 1 न्यूट्रॉन है। ओके, 2 - 1 बिकम्स 1। तो अब यहां से इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 1 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज 1 प्रोटॉन का मतलब +1, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब -2, तो चार्ज इज गोइंग टू बी -1। ओके, और इसका मास ऑब्वियसली कितना है मेरे पास, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, तो मास 2 हो जाएगा। तो चार्ज टू मास रेशो इज गोइंग टू बी -1/2। ओके, तो अगर तुम्हारे पास 1 था और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन +15 डिग्री था, और तुम्हारे पास अब -1/2 है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली जब ये हाफ हुआ तो ये एंगल भी हाफ होगा। तो जब एंगल हाफ होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 7.5, और ये है माइनस और ये है प्लस, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी -7.5 डिग्री। ओके, लेट मी चेक, multiply by 15, yes, -7.5 degree. Okay, so -7.5 degree is the right answer, which is why B is going to be the right answer. Okay, I hope it makes sense to you कि ये आपके पास -1/2 चार्ज टू मास रेशो है। तो अगर हाफ हो गई चार्ज टू मास रेशो, तो एंगल भी हाफ होगा। सही है। Question number 15. The outermost electrons in an atom of neon occupies a particular orbital. Which row shows the relative energy of the shape of this orbital? Okay. नेऑन की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 10 कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p6। आप सब जानते हैं कि इसकी शेप स्फेरिकल और इसकी शेप डम्बल, और आप जानते हैं कि ये होगा लो एनर्जी और ये होगा हायर एनर्जी। सही। सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल रिलेटिव टू अदर, अब वो कह रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तो ये हैं। सही है। तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली हायर एनर्जी का p which has a dumbbell shape, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल रिलेटिव टू अदर ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हायर होगा ऑब्वियसली। तो हायर यहां भी है, हायर यहां भी है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए।
ठीक है, in which pair does each species has the same number of unpaired electrons? Same number of unpaired electrons. Oh my goodness, that's going to be very, very tough because we need to attempt all of them, and there is no shortcut. Same number of unpaired electrons. Same number of unpaired electrons. So let's go for the shortcut now. Aluminum का atomic number 13 है. 10 electrons in place of N. 3s2 and then 3p1. सही है, तो यहाँ आपके पास 1 unpaired electron है. Copper 2 ions. Atomic number 29. 18 electrons की जगह argon. और ये हो जाएगा 3d9. सो 3d9 की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं, मैंने आपको करवाई है ये कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, तो इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना. आई थिंक ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओके, बिकॉज एल्यूमिनियम के पास भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कॉपर के पास भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ओके, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें. कैल्शियम की बात कर लेते हैं. 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन, ये हो जाएगा 3s2 3p6 4s2. तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है कैल्शियम में, इसलिए ये रॉन्ग. सी भी रॉन्ग क्योंकि कैल्शियम में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. ऑक्सीजन 2 माइनस, इट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 8. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10. तो 1s2 2s2 एंड देन 2p6. तो गाइस इसमें तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये भी गलत. ओके, which statement about the electrons in a ground state of carbon atom is correct? मैंने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन करवाया आपको, राइट? देखते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में नहीं होते भाई. वेट, 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कह सकते हो बिकॉज 1s2 2s2 एंड देन 2p2. तो 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कह तो सकते हो. ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, कह सकते हो. Wait, let me read the other options. That's confusing. There are more electrons in p orbital than there are in s orbital. नहीं, that option is absolutely incorrect because p में भी true है, s में भी true है. फिर वो कह रहे हैं आपसे the occupied orbital of highest energy is spherical. Highest energy orbital जो है वो p है and it has a dumbbell shape. Spherical जो होता है वो तो s orbital को represent करता है. इसका मतलब option C is incorrect. Next, the occupied orbital of the lowest energy is spherical. Yes, occupied orbital of lowest energy is spherical in the ground state. D is going to be the right answer, guys. क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे इसकी एनर्जी लोएस्ट होगी और इसकी शेप क्या होगी? स्फेरिकल. ओके, 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स नहीं है इसलिए क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 शेल्स हैं. ये फर्स्ट शेल इसके एंड सेकंड शेल इज एल. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. Which atomic orbitals are occupied in an atom of phosphorus? Phosphorus, शॉर्टकट लगाते हैं. ग्रुप 15 का एलिमेंट है. 5 electrons in valence shell. ओके, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2. p में कितने होंगे? 3. एंड सिंस phosphorus belongs to period 3, so it's going to be 3s2 and 3p3. Oh, no, we need to cover the entire electronic configuration because it's not asking for the valence shell. Look,
phosphorus has an atomic number of 15. Configuration करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and then 3p3. Okay. Which atomic orbitals are occupied in an atom of phosphorus? तो occupied जो है वो ये हैं. तो 2s occupied है, 2p occupied है, 3s occupied है. C is going to be the right answer. Okay. 3p जो है वो incomplete है, half filled है वो. The table shows the number of protons, neutrons, and electrons in 4 different particles W, X, Y, and Z. Which pair represents atoms of the two isotopes of the same element? Isotopes of the same element. क्या criteria होता है? Same number of protons and electrons but different number of neutrons. तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ सेम है? यहाँ. ठीक है, यहाँ भी सेम है. डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ है. तो इसका मतलब W and Y, A is going to be the right answer. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने चाहिए. तो W और Y के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है, जबकि न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट है. तो W and Y is the correct answer. That's an easy stuff. Question number 20. Oh my goodness, that's going to be very, very difficult. The graph shows variation of the first ionization energy with proton number for some elements. The letters used are not the usual symbol for the elements. Which statement about the element is correct? Okay. अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो आपको पता चलेगा कि ये आपका पीरियड 2 का ट्रेंड है और आपको पता चलेगा कि ये आपका पीरियड 3 का ट्रेंड है और दोनों की शेप सेम है, डिप्स सेम है ना. तो ये आपका क्या हो जाएगा? पीरियड 2 का ट्रेंड, जो कि हमने क्लास में किया हुआ है. और ये आपका क्या हो जाएगा? पीरियड 3 का ट्रेंड. इसका मतलब ये आपका नोबल गैस है बिकॉज उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास. और ये भी आपका क्या है? नोबल गैस है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है. और मैंने आपको समझाया था कि राइट आफ्टर नोबल गैस एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं. अगर ये ग्रुप 1 है तो ये ऑब्वियसली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से जज करोगे आप. ऑलराइट. वो कह रहे हैं P and Q आर इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. P and X आर इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. बेटा P भी नोबल गैस है, X भी नोबल गैस है, तो ये नोबल गैसेस सेम ग्रुप में तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, सेम पीरियड में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. इसलिए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. फिर वो कह रहे हैं द जर्नल इंक्रीज फ्रॉम Q to X इज ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक रेडियस. Q to X यानी यहां से यहां तक जाते हैं तो वो कह रहे हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, जबकि हम अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है. इसका मतलब बी इनकरेक्ट है. Then the small decrease from R to S is due to the decreased shielding. R to S shielding decrease होती है. Across the period मैंने आपको कहा shielding remains same. इसका मतलब ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो राइट आंसर ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों? डी. डी को देख लेते हैं. द स्मॉल डिक्रीज फ्रॉम यू टू वी इज ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स व्हाट वी हैव डन कि यू और वी के अंदर स्पिन स्पिन रिपल्जन होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल फ्रॉम वी बिकम्स इजियर एंड देयरफॉर इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन यू. तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से अंदाजा हुआ होगा आपको कि आपको स्केचेस भी बाय हार्ट याद होने चाहिए पीरियड 2 पीरियड 3 के. आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी नोबल गैस की है. आपको ये भी पता होना चाहिए कि राइट आफ्टर नोबल गैस एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. दैट्स व्हाट वी हैव डन entirely in the class. Okay. All right, guys, let's talk about question number 21. 21 question says that element X and Y are in the same group of the periodic table. Now, that's a very, very important statement. If they are found in the same group, which means
they have same number of valence electrons. All right, so same group means same number of valence electron. That's my first point. Second, और आप जानते हैं कि ग्रुप ट्रेंड में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस down the group. All right, okay. Now check करो, x की first ionization energy is lower than y, second is lower than y, third is lower than y, fourth is lower than y, fifth is lower than y, and sixth ionization energy is also lower than y. इसका मतलब ये हुआ कि x की आयनाइजेशन एनर्जी y से कम है. सो अगर x की आयनाइजेशन एनर्जी y से कम है तो ऑब्वियसली x जो है वो y से नीचे होगा पीरियोडिक टेबल में. तो x is below y in the periodic table. All right, that is the initial information which we can collect it from this data. Now let's find out the biggest energy gap. As you can see, the biggest energy gap exists between fifth and sixth electron, which means between fifth and sixth shell changes. Similarly, the biggest energy gap exists between fifth and sixth again, which means between fifth and sixth electron shell changes. इसका मतलब x जो element है उसमें fifth और sixth electron के दरमियान shell change हुआ. इसका मतलब these 5 electrons are removed from the valence shell. Similarly, y में भी these 5 electrons are removed from the valence shell. इसका मतलब both element x and element y are found in group 15 of the periodic table. So that's my another statement. Both x and y are found in group 15 of periodic table because 5 electrons are removed from the valence shell. All right, so अब हमें periodic table को देखना है. Let's get the periodic table first and then फिर उसके बाद हम उस periodic table के ऊपर apply करेंगे information अपनी. So this is our periodic table. और group 15 है तो group 15 में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है. तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक. ओके देखो, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है दैट इज Sb एंड देन बिस्मथ है. ऑलराइट, सो हम ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि x जो है वो y से नीचे होगा इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये हमारे पास क्या हो जाएगा y और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x बिकॉज x जो है वो y से नीचे है डाउन द ग्रुप क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू y कम आ रही है. तो x जो है वो एंटीमनी है आपका, वो ये है, और y जो है वो आपका आर्सेनिक है, वो ये है. एंड देयरफॉर A is going to be the right answer. I hope it makes sense to you. फिर वो कह रहे हैं y is the ionic radius of a chloride ion larger than the ionic radius of sodium ion. तो आप जानते हैं कि क्लोराइड
आयन का रेडियस बिगर होता है बिकॉज रिपल्जन ज्यादा होती है, सोडियम आयन का रेडियस स्मॉलर होता है बिकॉज प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा होती है. तो सोडियम is a metal, chlorine is a non-metal, it has nothing to do with the ionic radius, which is why option D is incorrect. Next is ionic radius increases regularly across the third period. Guys, थर्ड पीरियड में सोडियम टू सिलिकॉन डिक्रीज होता है, फिर फॉस्फोरस टू क्लोराइड भी डिक्रीज होता है. ऑलराइट, अगर आपको आयनिक रेडियस का स्केच याद हो, फॉस्फोरस इज द हाईएस्ट एंड क्लोराइड इज द लोएस्ट. So option C is also incorrect. Next, chlorine has a bigger proton number than sodium. That's right, but reason नहीं है. A chloride ion has one more occupied electron shell than a sodium ion. बिल्कुल सही बात है. सोडियम आयन के अंदर 2 शेल्स होते हैं, हमने बताया था आपको, 10 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से 2 and 8. और क्लोराइड आयन के अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 शेल्स होंगे, 2 8 8. So I think A is going to be the right answer. Okay. Question 23. When nuclear reaction takes place, the element produced are different from the element that reacted. Nuclear reactions, such as one of below, are used to represent changes that occurs. The nucleon number total is constant. Okay. ठीक है. At 236 and the proton number total is constant at this. Okay, तो न्यूक्लियर रिएक्शन की खास बात ये होती है कि जो प्रोटॉन नंबर होते हैं और न्यूक्लियन नंबर होते हैं वो हमेशा कंजर्व्ड हो जाते हैं. ऑलराइट, यानी रिएक्टेंट साइड पे जितना एटॉमिक नंबर होगा, प्रोडक्ट साइड पे भी उतना ही एटॉमिक नंबर हो. रिएक्टेंट साइड पे जितना न्यूक्लियन नंबर होगा, प्रोडक्ट साइड पे भी उतना ही न्यूक्लियन नंबर हो. दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? In another nuclear reaction, uranium-238 is reacted with deuterium ion, an isotope of a new element J is formed as well as 2 neutrons. What is the isotope of J? तो सबसे पहली बात, इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियन नंबर कितना हो जाएगा मेरे पास? ये है 238 और ड्यूट्रियम का 2, सो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 240. और प्रोटॉन नंबर टोटल कितना होना चाहिए? 92 और हाइड्रोजन का 1 इज गोइंग टू बी 93. सो रिएक्टेंट साइड पर न्यूक्लियन नंबर है 240 और प्रोटॉन नंबर है 93. तो प्रोडक्ट साइड पे भी न्यूक्लियन नंबर कितना होना चाहिए? 240. बट द थिंग इज कि 2 न्यूट्रॉन्स आर लॉस्ट, राइट? सो अगर 2 न्यूट्रॉन्स आर लॉस्ट तो 240 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो जो कि न्यूट्रॉन से रिलेटेड है, तो तुम्हारे पास जे का मास कितना आएगा? 238. ये तुम्हारा जे का मास आ गया. एंड ऑब्वियसली तुम्हारा एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ऑलराइट, सो जे तुमने देखना है कि ये कहां पर लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में. तो एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होना चाहिए ऑन बोथ द साइड. तो एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, दैट इज 93. और देखो ये 238 है और ये 2, तो 240 हो जाएगा यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड पे. लेकिन जे का सिंबल ये होगा. तो 93 देखते हैं कहां पर लिखा है. 93 93 93, where is 93? 93 is this Neptunium. So Neptunium 93 has a mass of 238. So right answer is going to be A. I hope it makes sense to you. Okay. All right. I hope it makes sense to you. Let's move on to the next question. Question number 24. The table gives successive ionization energies for element X. What could be the formula of a chloride of X? तो सबसे पहले तो biggest energy gap determine करेंगे, and obviously as you can see biggest energy gap exists between 5th and 6th, and that's actually 6,300. Okay, that indicates that these first 5 electrons are removed from the valence shell. All right, which means element belongs to group 15 of the periodic table. And in the class I have told you कि group 15 के जो elements होते हैं, group 15 के जो elements होते हैं वो 3 covalent bonds form करते हैं. अगर वो 3 covalent bonds form करते हैं तो obviously वो 3 covalent bonds आपको सिर्फ और सिर्फ option C में नजर आ रहे हैं, which is why C is going to be the right answer. Question number 25. Use of the data booklet is relevant to this question.
element X forms X negative ions that can be oxidized to element X by acidified potassium magnate 7. Guys, first of all, potassium magnate 7 is an oxidizing agent. तो वो एलिमेंट X को जो है, जो कि बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट है X नेगेटिव, उसको ऑक्सीडाइज करके एलिमेंट X में कन्वर्ट कर देगा. व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X? तो फर्स्ट ऑफ ऑल X हैज अ नेगेटिव चार्ज, और -1 चार्ज एक्चुअली ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कैरी करते हैं. ओके, और ग्रुप 17 एलिमेंट्स अगर हैं तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, राइट? तो बेसिकली अगर मुझे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा दिया जाएगा, तो मैं अगर ग्रुप 17 के इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो मैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा, बिकॉज बिगेस्ट एनर्जी गैप 7th और 8th इलेक्ट्रॉन के दरमियान एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज फर्स्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द वैलेंस शेल. तो नोट करो, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, फिफ्थ, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, एंड एट्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ. तो गाइस, व्हाट आई वाज सेइंग कि these first 7 electrons are removed from the valence shell because element belongs to group 17 because it carries -1 charge. इसका मतलब जो बिगेस्ट एनर्जी गैप है वो 7th और 8th के दरमियान आएगा. तो कॉन्सिक्वेंटली एग्जामिनर ने तो मुझे सिर्फ 4 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दी हैं, उसने तो मुझे 7th और 8th की इंफॉर्मेशन दी नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर जो है वो कुछ मेरा आंसर जो है वो कुछ, आई बिलीव डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज उसमें फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी में बिगेस्ट एनर्जी गैप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. इसको हम एक और एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं. किस तरह से देख सकते हैं? देखो, मैं इसको एक और एक्सप्लेनेशन में दिखाता हूँ. गाइस, चेक बिगेस्ट एनर्जी गैप चेक करना है मैंने. सो इन दोनों के दरमियान बिगेस्ट एनर्जी गैप देखिए, ये हो जाएगा 3070 minus 418. So it's going to be 2652. 4600 minus 3070, so it's 1500 or 1530, and then 5860 minus 4600 is going to be 1260. ओके, तो बिगेस्ट एनर्जी गैप जो है वो ऑप्शन ए में फर्स्ट और सेकंड के दरमियान है. इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट फ्रॉम द वैलेंस शेल. इसका मतलब एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, और ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं करते, which means option A is incorrect. Let's talk about B. Guys, as you can see clearly that biggest energy gap exists between third and fourth. ये है जनाब 11,600 minus 2760, 2740, 2740, तो it's going to be 8,860. So biggest energy gap कहाँ से exist कर रहा है? थर्ड और फोर्थ. इसका मतलब these 3 electrons are removed from the valence shell. इसका मतलब element belongs to group 3, और group 13 के जो elements होते हैं वो basically negative charge form नहीं करते. ऑप्शन सी की बात करते हैं. ऑप्शन सी में बिगेस्ट एनर्जी गैप जो है वो हमें देखना है कहाँ पर है. ऑप्शन सी को भी चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन डी को भी चेक करना पड़ेगा, बिकॉज बिगेस्ट एनर्जी गैप देखना है हमें. चलें देखते हैं. 1150 minus 590, ये हो जाएगा जनाब 560. फिर 4940 minus 1150, 3790. फिर आपके पास 6480 minus 4940, it's going to be 1540. सही है. ऑप्शन डी का भी देख लेते हैं. 1840 minus 1010, 830, 2040 minus 1840 is going to be 200.
So 4030 minus 2040 is going to be 1990. So I believe जो बिगेस्ट एनर्जी गैप है वो एक्चुअली यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए ऑप्शन सी में, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, राइट। इसका मतलब ये जो सी है ये भी आपका ग्रुप टू से बिलोंग करेगा, क्योंकि फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द वैलेंस शेल, एंड ऑब्वियसली जो ग्रुप टू के एलिमेंट होते हैं वो एनाइन नहीं बनाते, कैटाइन बनाते हैं, विच इज व्हाई आई वाज राइट इनिशियली दैट डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो मेरी जो इनिशियल वर्किंग थी उसके लिहाज से भी डी था, और मैं अगर वन बाय वन ऑप्शन को डिस्कस करूं तो उसके लिहाज से भी डी है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि भाई यहाँ पर कहीं पर भी बिगेस्ट एनर्जी गैप एग्जिस्ट नहीं करता हुआ नजर आ रहा, बिकॉज in order to get that biggest energy gap in option D, it has to be, we need to be remove more than 7 electrons, okay, क्योंकि biggest energy gap 7 और 8 के दरमियान exist करेगा। 26, the first 6 ionization energies of 4 elements are given, which element is most likely to be group 4 of the periodic table? अगर group 4 का है तो biggest energy gap 4th और 5th के दरमियान exist करना चाहिए। तो let's find out कि कहां पर है biggest energy gap 4th और 5th में। वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, 13,400 minus 9540, it's going to be 3860। then इन दोनों के दरमियान देखते हैं, 13,600 minus 10,500, 3,100, oops, यहाँ 3,100 है। oh, C is going to be the right answer for sure, because जो biggest energy gap है वो 4th और 5th में यहाँ है। That's actually 37,800 minus 6,6220. That's 31,580. That is the biggest energy gap in question 26. ठीक है। Twenty-seven. The diagram shows the first ionization energy of 11 consecutive elements. Which type of element are labeled X and Y? तो मैंने आपसे क्लास में कहा था कि जो बिगेस्ट हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का एलिमेंट होता है वो ऑब्वियसली नोबल गैस होता है, और मैंने आपसे कहा था कि राइट आफ्टर नोबल गैस एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दैट इंडिकेट्स कि ये एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, ग्रुप 1 से। सही है। तो अगर ये ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, तो ये भी कौन सा एलिमेंट है, नोबल गैस, बिकॉज इसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट। तो राइट आफ्टर नोबल गैस कौन सा एलिमेंट होगा, ग्रुप 1 का। तो इसका मतलब एलिमेंट एक्स भी ग्रुप 1 का है, एलिमेंट वाई भी ग्रुप 1 का है, इसका मतलब ग्रुप 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, equations involving 4 enthalpy changes are shown. What is the second ionization energy of sodium? आप नोट करें, जो आपके पास W है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट। जबकि X जो है वो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि उसके ऊपर 2+ चार्ज है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं साइमल्टेनियसली, ओके। तो अगर आपको सिर्फ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी तो जाहिर सी बात है आप X माइनस W करेंगे, तो आपको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी, which is why B is going to be the right answer. Next is the graph shows first 13 ionization energy for element X. What can be deduced about element X from the graph? तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वैलेंस शेल से रिमूव होता है, और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम वैलेंस शेल। That means element belongs to group 2 of the periodic table. तो एलिमेंट ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा, तो ग्रुप 2 कहां पर लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। वो कह रहे हैं आपसे 3 सक्सेसिव elements in the periodic table have first ionization energy which have the pattern shown in the diagram. What could be the first element of the sequence? वो कह रहे हैं बताओ ये क्या होगा। तो भाई ये भी क्लास में करवाया कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा किसकी होती है, नोबल गैस की।
और मैंने क्लास में लिखवाया है और बताया है कि राइट बिफोर नोबल गैस एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 17 का कौन सा एलिमेंट होगा? सी होगा, तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर वो कह रहे हैं विच डायग्राम शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एटम इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट। लोएस्ट एनर्जी स्टेट का मतलब गाइस ग्राउंड स्टेट। और नाइट्रोजन जो है, ओ सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओ माय गुडनेस 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2 2s2 2p4, द राइट आंसर इज पी। ओके, next is use of the data booklet is relevant to this question. In the gas phase, aluminum in a transition element requires the same amount of energy to form 1 mole of an ion with a 2 plus charge. What is the transition element? Okay, 2 plus charge का एक आयन बनाया है, okay, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सम होती है। तो सबसे पहला काम एल्यूमिनियम की फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डेटा बुकलेट से देखेंगे। चलते हैं डेटा बुकलेट पे, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम देखते हैं। ओके, आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 577 1820, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 577 1820। ये हो जाएगा आपके पास 2397 ना। तो गाइस इशू इज कि ये एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए, किस ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलेगी वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं सबसे पहले कोबाल्ट को देखूंगा, कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, ये रहा कोबाल्ट, कोबाल्ट की 757 1640, कोबाल्ट के लिए 757 and 1640, 757 प्लस 1640। तो क्योंकि हम सिर्फ दो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें 2 प्लस चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो 757 प्लस 1640 इज गोइंग टू बी 2397। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, और वो यही कह रहे थे कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड in order to make 2 plus charge, which is why A is going to be the right answer. Question number 33, this belongs to mass spectrometry. हमने स्टार्ट किया था क्लास में, बट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। The diagram shows the mass spectrum of sample of zinc. Use the data to calculate the relative atomic mass. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जनाब इसकी परसेंटेज अबंडेंस 40, इसकी परसेंटेज अबंडेंस 30 और इसकी भी परसेंटेज अबंडेंस 30। तो हमने AR अगर कैलकुलेट करना होता है जैसे मैंने करवाया था, तो मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, mass of second isotope which is 66, abundance of second isotope which is 20, okay, sorry 20 नहीं 30, plus mass of third isotope which is 67, abundance of third isotope into 30 divided by the total abundance। तो total abundance इन तीनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद मुझे मिलेगी which is 100। तो अगर मैं इन सबको देखूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं, 64 into 40 plus 66 into 30 plus 67 into 30 divided by 100, it's going to be, oops, 64 into 40 plus 66 into 30 plus 67 into 30 divided by 100, it's going to be 65.5. So C is going to be the right answer. Guys, I hope it makes sense to you. That's the end of this worksheet. After 33 questions, मुझे उम्मीद है कि आप बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। आपका होमवर्क ये है कि आपने इन क्वेश्चंस को खुद से भी रिपीट करना है, रिवाइज करना है, और टॉपिकल बुकलेट्स में जितने एमसीक्यूज हैं और जितने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, सबको अटेम्प्ट करना है। किसी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना, बिकॉज इट गोइंग टू बी कम इन योर टेस्ट। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट भी आपका उतना ही अच्छा होगा। Thank you very much.